Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss the topic what is algebra and what is linear algebra and what are the application of algebra and linear algebra in our daily life and how we can use algebraic expression in our daily life with the help of examples. So in this regard, first of all I would like to tell you that the definition of algebra. What is algebra? What is algebra? Algebra is a branch of mathematics dealing with the symbols and the rules for manipulating those symbols. In elementary algebra, those symbols, today Latin and Greek letters, represent the quantities without fixing values known as variables, like that of x, y, z. Let's suppose such kind of values are called variables in algebra. And what is algebra? I have the two, for example, in our daily life, whenever we want to calculate the area of the field, like that area of triangle, area of rectangle, we can use algebraic notations in this type of applications. So what is linear algebra? The branch of mathematics concerning with the vector spaces. What do you mean by vector spaces? Vector means we are going to discuss about the dimensions, like that x-axis or y-axis or z-axis, 2 dimension or 3 dimensions, in which we discuss vector space means dimensions, and linear mappings between the such spaces. Linear algebra is about the linear combinations, that is using the arithmetic on columns of the numbers called vectors and arrays of the numbers are called matrices to create the new column and array of the numbers. Linear algebra is the study of lines, planes, vector spaces and mappings that are required for the linear transformations. It is the study of system of linear equations. So again, what is the proper definition of the linear algebra? A branch of mathematics that is concerned with mathematical structures closed under the operations. Operations may be addition or multiplication or scalar addition or scalar multiplication, and that include the theory of systems of linear quantities, linear equations, matrices, determinants, vector spaces and linear transformations as well. So why we need linear algebra? हमें algebra की ज़रूरत क्यों पेश आई? Because simple algebra से भी तो काम चल रहा था. Why we need linear algebra? So linear algebra is a vital in multiple areas of the sciences in general, because linear equations are so easy to solve, because it's a very easy to solve, and particularly every area of the modern sciences. It converts the large number of the problems to the matrix and thus we solve the matrix. बेसिकली हम लीनियर अलजेब्रा के अंदर क्या करते हैं कि बहुत बड़ी हमारे पास जो प्रॉब्लम्स होती हैं हम उनको बेसिकली मैट्रिक्स की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं और उन मैट्रिसेस को हम सॉल्व करके इनको सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट कर लेते हैं. ये हम किस तरह से करते हैं, मैं आगे एक ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम की एक एग्जांपल बोर्ड पे सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हम ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के अंदर लीनियर अलजेब्रा की एप्लीकेशन को हम लोग यूज़ करेंगे, जो कि हम डेली लाइफ में हम कर रहे हैं. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड. लीनियर अलजेब्रा इन द फील्ड ऑफ आईटी. आप आईटी के अंदर लीनियर अलजेब्रा को कैसे यूज़ कर सकते हैं, अब मैं डिफरेंट फील्ड्स के अंदर लीनियर अलजेब्रा को हम लोग किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, उस चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं. लीनियर अलजेब्रा in information technology can broadly divided into the two categories. Linear algebra for the spatial quantities. Here we are dealing with 2, 3, 4 and 4 dimensions vectors. You are concerned with the rotations, projections and other matrix operations that have the some spatial interpretation. This is the kind of linear algebra that comes up, for example, in computer graphics and physics simulations. Linear algebra for statistics. Here you are dealing with the vectors in high dimensional spaces and that have no particular spatial interpretation, and you are interested in matrix decompositions and so on. This domain includes the signal processing, statistical mechanics,
statistical machines, learning and compressions. Applications of linear algebra in information technology, there are the many applications like that. Application of linear algebra in cryptography, application of linear algebra in reflection, application of linear algebra in contraction and extraction of the graphics, and linear algebra, application of linear algebra in rotations, application of linear algebra in shear, application of linear algebra in translations, application of linear algebra in conversion of dimensions. हम 2D को 3D में convert कर सकते हैं एक dimension से दूसरी में, ठीक है. application of linear algebra in circuit theory के अंदर भी इसका बहुत ज़्यादा काम किया जाता है. linear algebra फॉर ट्रैफिक फ्लो. अब ट्रैफिक फ्लो के लिए किस तरह से हम इसे यूज़ करते हैं, मैं इसकी ये ग्राफिक्स में भी यूज़ हो रही है. हम ट्रैफिक फ्लो के लिए इसकी एग्जांपल को सॉल्व करके देखते हैं. ये डिफरेंट इसकी एप्लीकेशंस हैं लीनियर अलजेब्रा की जो आपके सामने हैं, ठीक है. इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में है और लीनियर अलजेब्रा यूज इन ट्रैफिक फ्लो. ट्रैफिक फ्लो में किस तरह से यूज़ होता है देखें. अब आपके पास ये ट्रैफिक फ्लो है. लेट्स सपोज दिस इज अ ट्रैफिक फ्लो सिस्टम. देयर आर द इनपुट टर्म्स एंड देयर आर आउटपुट टर्म्स, राइट. देखें अब टोटल आपके पास कितने हैं, 85 व्हीकल्स हैं. जो X1 आपके पास ये रोड्स के नेम है, आपके पास ये X1 रोड है, आपके पास X2 है, X3 है, X4 है एंड X5. देयर आर द 5 रोड्स, राइट. वी हैव टू कंट्रोल द ट्रैफिक, राइट. हाउ वी कैन कंट्रोल? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन केस ए हम इसमें रोड्स पे ट्रैफिक की कितनी कैपेसिटी है, रोड्स की कितनी व्हीकल्स एट अ टाइम उस रोड के ऊपर रन कर सकती हैं, उस पर चल सकती हैं, ठीक है. तो हम देखते हैं यहाँ से इनपुट किस तरह से, कि यहाँ से केस ए में देखें कि टोटल आपके पास यहाँ पे इनपुट वैल्यूज़ हैं. केस ए में इनपुट आपके पास कितनी है, 85. इनपुट ये आ गई आपके पास 85 इक्वल. अगर 85 इन हुई है तो आउट कहाँ से कितनी हो सकती हैं टोटल आपके पास देखें. अब आपके पास यहाँ से पॉसिबल पाथ कौन से, ये X1 में पाथ है आपके पास, X1 प्लस X2. यहाँ से A1 से X1 की तरफ व्हीकल जा सकती है या फिर X2 की तरफ जा सकती है. अब कितनी व्हीकल जा सकती हैं टोटल, हमने ये X1 और X2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है यहाँ से. वो कैसे करेंगे, हम ये मैट्रिक्स बनाते जा रहे हैं साथ साथ. हम इन तीनों मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे और उसका सोल्यूशन मैं आपको फाइंड करने का मेथड अभी बताता हूँ. अच्छा, अब पाथ बी पे चलते हैं. पहले पाथ ए था, अब पाथ बी है. अब पाथ बी पे देखते हैं कि कितनी व्हीकल इन हो सकती है और कितनी आउट हो सकती है. पाथ बी पे इन होने के लिए कितने रास्ते आ रहे हैं आपके पास ये लाइन 45 यहाँ से व्हीकल आ सकती हैं, X1 यहाँ से आ सकती हैं और X3 आपके पास यहाँ से आ सकती है. इन साइड पे आपके पास X1 प्लस X3 प्लस 45, जबकि आउट कितनी हो रही है यहाँ से 120. इसका मतलब है मैं X1 X3 कितनी यहाँ से X1 लाइन पे कितनी व्हीकल्स आएंगे, X3 पे कितनी आएंगी और प्लस 45 करेंगे और वो इक्वल किसके हैं, 145. मीन दैट कि अगर तीनों का सम करें तो वो 120 के इक्वल ही आना चाहिए यहाँ पे, ठीक हो गया. अच्छा, पाथ सी पे देखते हैं. इन एंट्रीज इनपुट कितनी एंट्रीज हो सकती हैं पाथ सी से, या एक तो X4 जा सकता है, राइट हो गया. X4 हो सकता है, X2 भी हो सकता है यहाँ से, ठीक है. X2 प्लस X4 और आउट कितनी हो रही है यहाँ से एक रास्ता निकल रहा है X3 के लिए, ये आपके पास X3 आ गया. उसके बाद आपके पास आउट में ये कितनी यहाँ पे D की तरफ जो जाते हुए आपके पास 70 आ रही हैं, 70 आ गई. इसी तरह से पाथ डी पे देखें आपके पास इन और आउट कितनी हो रही हैं. पाथ डी में इन होने के लिए आपके पास एक 70 था इक्वल, और आउट में कितने 2 आ रहे हैं आपके पास, एक X5 आ रहा है और एक आपके पास एक आपके पास क्या आ रहे हैं 45. ये 45 आ रहा है आप लोगों के पास. अब ये आपके पास एक मैट्रिक्स बन चुका है. अब आपने इस मैट्रिक्स में से ये आप कितनी टोटल व्हीकल्स हैं आपको ये पता है, 85 प्लस X4 इज इक्वल टू 120 प्लस X5. अब आपके पास ये एक मैट्रिक्स बन चुका है. आप इस मैट्रिक्स को सॉल्व करें. यहाँ से आप लोग X1, X2, X3, X4 और X5 की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लें. आपको टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स किस रोड पे कितनी चल रही हैं आप वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी व्हीकल्स होती हैं. जैसे कि लास्ट टाइम हमारे पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ था कि जब भी हमारे यहाँ पे कोई फेस्टिवल आता है या वेकेशंस आते हैं तो लोग सारे नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ चले जाते हैं, ठीक है. जब नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ जाते हैं तो एक उसकी ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम एक बनाया होता है उन लोगों ने, और वो लोग क्या करते हैं तो ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे होते हैं कि इतनी लिमिट है कि मरी के अंदर इतनी गाड़ियाँ एंटर हो सकती हैं. जो आपको एक स्टैटिक्स मिलती है इंटरनेट पे आ रहा होता है या फिर आपको न्यूज़ चैनल में मिलता है कि इस टाइम पे मरी के अंदर 4500 गाड़ियाँ माल रोड पे आ चुकी हुई हैं. मीनवाइल कि उन्होंने एक गाड़ी काउंट नहीं की, उन्होंने एक सिस्टम को फॉलो किया हुआ है. वो एक सिस्टम है उनके पास, एक सारा एल्गोरिथम कंप्यूटर के अंदर हम लोग ऑलरेडी फीड कर देते हैं. जस्ट हम उसके अंदर डेटा एंटर करते हैं. X1 से इतने होते हैं, X2 से, X4 से, X5 से, वो टोटल एवेल्यूएट करके बता रहे थे कि इस टाइम इस रोड के ऊपर इतनी गाड़ी, इस रोड पे इतनी है. तो क्या आपको लगता होगा कि शायद आप सोचते हो कि हर बंदा एक बंदा खड़ा होगा और वो सारी व्हीकल्स को काउंट कर रहा है? ऐसा कभी भी नहीं है. वो व्हीकल्स को काउंट नहीं करते. उनके पास एक इस तरह की मैपिंग होती है. वो सारी
इसकी इक्वेशंस बनाते हैं, लीनियर इक्वेशंस बनाते हैं, लीनियर इक्वेशंस के अंदर डेटा एंटर करते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं कि x1 रोड पे कितनी व्हीकल्स हैं, x2 पे कितनी, x4 पे कितनी है। और जो आपको वायरलेस सिस्टम के ऊपर बैठे होते हैं IT एक्सपर्ट्स, उनके साथ कनेक्टेड होते हैं, जो आप पुलिस ट्रैफिक वार्डन्स होते हैं वो उनके पास ऑलरेडी ट्रैफिक वार्डन्स के पास ऑलरेडी वो होते हैं वॉकी टॉकी होते हैं। वो वॉकी टॉकी से क्या करते हैं कि जो उनके पास वॉकी टॉकी होते हैं वो उससे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और उन्हें बताया जा रहा होता है कि रोड पे इस टाइम पे इस रोड से इतनी ट्रैफिक आ रही है आपके पास और इतनी एग्जिट होने के लिए वेटिंग पे, और आप इसको ट्रैफिक कंट्रोल को इतने मिनट पे ट्रैफिक को ऑन करें और ट्रैफिक को ऑफ करते रहें। आप लोग इस तरह से इसकी स्विचिंग करते रहते हैं वो लोग। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हम इन तमाम मैट्रिक्स को कन्वर्ट करते हैं। ये आपके पास मैट्रिक्स कुछ इस टाइप की फॉर्म में बन जाएगी, कुछ ऐसी मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगी। इस तरह का मैट्रिक्स आएगा। इस मैट्रिक्स को आप सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के अंदर आप इसके अंदर ऐड करेंगे, आप एक आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे और इसको रिडक्शन मेथड से सॉल्व करके आपके पास x1, x2 और x3, 5 की सारी वैल्यूज़ आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपके पास आंसर आ जाएंगे इसके। और वेरिएबल कॉस्ट है, किसी चीज़ की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ये स्लाइड्स में आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आप वीडियोस में आप इस प्रॉब्लम को खुद आप रीड आउट कर लें और आप किसी चीज़ की कॉस्ट कैलकुलेट करनी हो तो वहाँ पे भी हम लोग लीनियर अलजेब्रा की एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं। और अगर आपके माइंड में और कोई एप्लीकेशन भी लीनियर अलजेब्रा की है तो आप कमेंट सेक्शन में जाएँ और मुझे बताएँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।